سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سبھی کا خیر مقدم آج کی نشریات میں. میں ہوں آپ کا میزبان نعیم، آپ کے ساتھ. نمسکار، آداب، ست سری اکال. دوستو، موسم بدل رہا ہے اور بدلتے موسم میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، چونکہ اس بدلتے موسم میں وائرل انفیکشن کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے قوت مدافعت میں اضافہ کرنے والی اشیاء کا استعمال ضرور کرتے رہیے. امیونٹی اگر آپ کی زیادہ ہوگی تو پھر آپ کسی بھی مرض سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ امیونٹی آپ کے جسم میں مرض سے لڑنے کے خلاف ایک طاقت، ایک ہتھیار کا کام کرتی ہے، اور ایسا کر کے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی وائرل انفیکشن کے خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کہتے ہیں ایک صحت مند جسم میں صحت مند ذہن ہوتا ہے، یعنی ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. اور جب آپ کی صحت برقرار رہتی ہے تو آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، اور جب صحت معدوم ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ہم بھی آپ کے ذہن و دل کے سکون کے لیے لے کر آتے ہیں اردو سروس کی نشریات. آئیے ایک نظر اہم خبروں کی سرخیوں پر ڈالتے ہیں پھولا پنڈتا صاحبہ کے ساتھ. نعیم، آپ کو اور تمام دوستوں کو میرا آداب، نمسکار، گڈ ایوننگ. پیش ہے اہم خبروں کی سرخیاں. نئی تعلیمی پالیسی میں سال 2025 تک پرائمری اسکول سطح پر سبھی بچوں کو بنیادی خواندگی فراہم کرنے کو اولین ترجیح دی گئی ہے. صدر جمہوریہ. نئی تعلیمی پالیسی بھارتی نوجوانوں کو روزگار اور ملازمتوں کے ابھرتے ہوئے شعبے کے لیے تیار کرے گی. وزیر اعظم. بھارت نے ہائپر سونک ٹیکنیک کے خلائی راکٹ کی کامیاب آزمائش کی، جو آتم نربھر بھارت کی جانب ایک بڑا قدم ہے. میٹرو خدمات مختلف شہروں میں 5 مہینے تک بند رہنے کے بعد مرحلے وار طریقے سے پھر سے شروع. تیسرے راشٹریہ پوشن ماہ کے دوران تغذیہ کی شدید کمی والے بچوں کی نشاندہی اور ان کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کی جائے گی. حکومت. ملک میں کووڈ-19 سے متاثرہ 32,50,000 سے زیادہ مریض ہوئے شفا یاب. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 70,000 مریض ہوئے صحت یاب. صحت یابی کی مجموعی شرح ہوئی 77.31%. اتر پردیش میں کاشی نگر ہوائی اڈے سے بین الاقوامی پروازیں تقریباً 2 مہینے بعد شروع ہو جائیں گی. US اوپن میں بھارت کے روہن بوپنا کا کینیڈا کے اپنے ساتھی کھلاڑی کے ساتھ مردوں کا ڈبلز کوارٹر فائنل مقابلہ. اور عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ US اوپن ٹینس میں چوتھے راؤنڈ کے اپنے میچ کے دوران ایک لائن جج کے گیند لگنے کے بعد ٹورنامنٹ سے ہوئے باہر. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں. ہم آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا لائیو سے بول رہے ہیں. دوستو، جیسے آپ کو انتظار ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، ویسے ہی ہمیں بھی آپ سے ملنے کا انتظار رہتا ہے. آپ کا اور ہمارا یہ مضبوط رشتہ جو محبت، اپنائیت اور خلوص کی ڈور سے بندھا ہوا ہے، تا قیامت جاری رہے، یہی ہماری تمنا ہے. اور آپ خوش رہیں، اپنی زندگی میں ترقی کی منزلیں طے کریں، صحت مند رہے، یہی ہماری خواہش ہے. آپ نے اپنے پیغامات کے ذریعے سوشل میڈیا کے ہمارے اس پروگرام کو مقبول کیا، اس کے لیے بھی ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. بہرحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت غزل. فنکار ہیں تسکین علی خان. آپ سبھی کو میرا پیار بھرا آداب. میں تسکین علی خان، میرے والد محترم استاد ممتاز علی خان صاحب کا بیٹا ہوں، اور مجھے اردو چینل بہت پسند ہے. میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اردو چینل. اس میں بہت اچھے اچھے پروگرام دکھاتے ہیں، خاص طور پر مشاعر کا پروگرام، اور جو مجھے بہت پسند ہے غزل کا پروگرام. میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور کوئی بھی مس نہیں کرتا میں غزل کا پروگرام، کیونکہ اس میں اتنے اچھے اچھے آرٹسٹ آ کے غزل گاتے ہیں تو ان سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں آپ سبھی کی نظر ایک غزل پیش کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب کی غزل، جو میرے والد صاحب نے اس کو کمپوز کرا ہے. جیسا آج کل کا ماحول چل رہا ہے اسی ماحول کے حساب سے غزل ہے، جس کا مطلب ہے: صحرا سا ہو گیا ہے گلستان تیرے بغیر،
सहरा सा हो गया है गुलिस्तान तेरे बगैर, दिल है भरी बहार में वीरा तेरे बगैर। आप सबकी नजर में सहरा सा हो गया, सहरा सा हो गया गुलिस्तान तेरे बगैर, सहरा सा हो गया गुलिस्तान तेरे बगैर, दिल है बड़ी बहार में वीरा तेरे बगैर, सहरा सा हो गया। दामन में तेरी याद से आंसू छलक पड़े, तेरी याद से आंसू छलक पड़े, पलकों पे हो रहा, पलकों पे हो रहा चरागा तेरे बगैर, दिल है बड़ी बहार में वीरा तेरे बगैर, सहरा सा हो गया। सहरा सा हो गया है गुलिस्तान तेरे बगैर, दिल है बरी बहार में वीरा तेरे बगैर। तस्कीन अली खां की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत गज़ल सुनी। ये नशरियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। जान है तो जहान है, सेहत के हवाले से सेगमेंट में आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। पेट के बल सोना सीखो। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। जब आप पीठ के बल सोते हो तो पोस्टीरियर लंग्स का जो पोर्शन है वो खुलता नहीं है और लेटरल लंग्स पूरे नहीं खुलते। उस सिचुएशन के अंदर में अगर आपको कोरोना होता है तो कोरोना हमेशा लंग्स का पोस्टीरियर पोर्शन इन्वॉल्व करता है या लेटरल पोर्शन इन्वॉल्व करता है। सो अगर आप पेट के बल सोने की कोशिश करते हो और सीख लेते हो, याद रखिए सारे जानवर पेट से सोते हैं, कोई पीठ के ऊपर में नहीं सोता। सो अगर आप पेट के बल सोते हैं, जिससे प्रोनिंग बोलते हैं, और आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो लंग्स पूरे खुलते हैं, इससे आपकी ऑक्सीजन लो नहीं होती। और ऑक्सीजन की भी अगर आपको जरूरत पड़ी और अगर आप ऑक्सीजन को भी प्रोनिंग लगा के सोते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और आप प्रोनिंग के साथ में हाई फ्लो नेजल कैनुला लेते हो या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन रखते हो तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ी और आप प्रोनिंग पोजीशन में 12 घंटे रोज का वेंटिलेटर लेते हो तो आपको बचने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, आज से, अभी से, आज रात को जब सोएंगे तो पेट के बल सोना सीखिए। नहीं सो सकते
तो अल्टरनेट करिए, कभी पेट पे, कभी साइड पे, कभी पेट पे, कभी साइड पे। सीधे मत लेटिए, खर्राटे भी नहीं आएंगी, सडन डेथ भी नहीं होगा, रात को हाइपोक्सिया भी नहीं होगा, और अगर कोरोना हो गया तो आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है इसमें कोई नई बात है तो इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। नमस्कार। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल ने कोरोना वायरस के बचाव से मुतालिक लंग्स यानी फेफड़ों की हिफाजत के लिए बेहद मुफीद जानकारी दे दी। खासकर सोने के पोस्चर्स के बारे में डॉक्टर साहब ने तफसील से बताया कि पेट के बल सोना सीखो। इस तरह सोने से लंग्स के साथ और भी कई दीगर फवाइद हैं, इसलिए डॉक्टर साहब की इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों, हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम का ये सिलसिला भी जारी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, दिल के कलम से। ये सेगमेंट लेकर हाजिर हो रहे हैं आपके दोस्त नईम। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना ख़त खोला अनजाने में। दोस्तों, ख़त नवीसी या मकतूब निगारी एक कदीम रिवायत है। ख़त को नामा और मकतूब भी कहते हैं। लिखने वाला कातिब या मकतूब निगार और जिसे ख़त लिखा जा रहा हो वो मकतूब आलिया कहलाता है। मौजूदा ज़माने में मकतूब निगारी या फिर ख़त नवीसी का अंदाज़ बदल चुका है। तवील तमहीदी फ़िक़रात और लंबे लंबे अलक़ाब व आदाब तर्क हो चुके हैं और मतलब की बात को सीधे सादे अंदाज में बयान करना ख़त की खूबी समझा जाता है। और एक ज़माना था दोस्तों जब अपने दिल की बात किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाने का वाहिद ज़रिया ख़त ही हुआ करता था। अपनी और अपने ख़ानदान की खैर आफियत ख़त के ज़रिए दरियाफ़्त की जाती, एक दूसरे को भेजी जाती। मगर अब दुनिया ने तरक्की की, नित नई नई टेक्नोलॉजी से रूशनास हुआ आज का इंसान अब तो पलक झपकते ही आपका पैगाम अपने दोस्त अहबाब के पास पहुंच जाता है। बल्कि अब तो ये भी है जनाब कि आप रूबरू भी हो सकते हैं वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, चाहे आप घर से 7 समंदर पार ही क्यों ना हो। मगर ख़त व किताबत का वो रिवायती तरीक़ा, उसकी बात ही कुछ और थी। कई कई दिनों के इंतज़ार के बाद ख़त मौसूल होता था। कभी कभी तो हफ्तों जाकर इंतज़ार पूरा हुआ करता था। जैसे ही डाके के आने का वक्त होता था, बेचैनी बेकरारी बढ़ जाती, और अगर उस दिन आपका ख़त नहीं आता तो उस कैफियत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता था और फिर एक और दिन इसी कैफियत में गुज़रता था। मगर दोस्तों, उसका अपना एक अलग ही लुत्फ़ था। बड़े बड़े लंबे चौड़े आदाब व अलक़ाब लिखे जाते, खूबसूरत जुमलों का इस्तेमाल किया जाता था, खुशख़ती का ख़ास ख्याल रखा जाता था और कई बार तो ख़त को खूब बना संवार कर भी लिखा जाता था। उम्दा उम्दा दिल में उतर जाने वाले अशार का इस्तेमाल एक ख़ास बात हुआ करती थी। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है दोस्तों कि ख़ुतूत नवीसी की शुरुआत कब हुई। हालांकि अंदाज़ा तो यही लगता है जब तहरीर वजूद में आई और दूर दराज में बसने वाले इंसानों को अपने हालात एक दूसरे को पहुंचाने की ज़रूरत पेश आई होगी, तभी से मकतूब निगारी या ख़ुतूत नवीसी का चलन शुरू हुआ होगा। ख़त का ज़िक्र हो और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के ख़ुतूत का ज़िक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है जनाब। हालांकि गालिब का नाम आते ही हमारा जहन उनकी शायराना अज़मत की तरफ मुंतकिल हो जाता है और उनकी गज़लों की शगुफ्तगी, एहसास जमाल, फ़लसफ़ियाना मोशगाफ़ी, ज़ख्मों में लिपटी हुई मुस्कुराहट और दर्द में डूबा हुआ लहजा हमारे दिलों पर एक देरपा असर छोड़ जाता है। उनके ख़ुतूत से नस्र की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ। गालिब ने फ़रसूदा तर्ज़ तहरीर और मुसज्जा व मुक़फ़्फ़ा अंदाज़ बयां को छोड़कर एक सेहतमंद, दिलकश, सादा मगर शोख व बरजस्ता अंदाज़ इख्तियार किया और ख़ुतूत का ऐसा ज़ख़ीरा छोड़ा जिनमें कदम कदम पर आमद और शान बेतकल्लुफ़ी जलवागर है। मुरासले की नहीं बल्कि मकालमे की कैफियत गालिब है। गालिब के ख़ुतूत में बातें करने का अंदाज़ इतना दिलचस्प और अनोखा होता है कि कहीं भी बेकैफ़ी महसूस नहीं होती। और हाँ,
मौलाना आज़ाद के गुबार ख़ातिर का ज़िक्र भी लाजमी है। गुबार ख़ातिर उन खतूत का मजमू है जो मौलाना आज़ाद ने किला अहमद नगर की क़ैद के ज़माने में मौलाना हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे थे। गुबार ख़ातिर में हमें मौलाना आज़ाद की शख्सियत अपनी तमाम तर नफासत, बुलंद ख़याली और अनानियत और इनफरादियत के साथ जलवागर नज़र आती है। बहरकैफ आज भी काफ़ी तादाद में लोगों ने खतूत की इस रिवायत को कायम रखा है, ज़िंदा रखा है, और इसका सबूत है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, जहां आज भी हज़ारों की तादाद में हमारे सामीन के खतूत हमें मौसूल होते हैं। और दोस्तों, एक बात ख़ास है इन खतूत की कि फरमाइशी खतूत के अलावा दिगर प्रोग्रामों में नश्र होने वाले खतूत भी शामिल हैं। और ये क्यों भूलते हैं जनाब, अपने महबूब का इजहार भी खतूत के ज़रिए ही मोहब्बतों के पैगाम भेजे जाया करते थे। यानी दोस्तों, महबूब अपनी मोहब्बतों का इजहार ख़त के ज़रिए ही किया करता था। चूँकि जो जज्बात आप ज़बान से बयान नहीं कर सकते थे, वो जज्बात अल्फाज की शक्ल में ख़त में तहरीर कर दिए जाते, और आशिक़ व माशूक़ ख़त को संभाल कर रखते और बार बार पढ़ते थे। और ख़ास बात ये दोस्तों, कई बार तो खतूत मुश्क अंबरी में डूबे होते थे, हत्ता कि ख़त में फूल भी भेजे जाते थे। बेशक दोस्तों, ये रवायत कम ज़रूर हो गई है, मगर जब तक ये दुनिया कायम दायम रहेगी तब तक खतूत नवीसी की रिवायत कायम रहेगी। इसके चाहने वाले ज़िंदा हैं और ये रिवायत भी ज़िंदा रहेगी। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। छुपा है वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमसे धड़कता है दिल। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी, इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। तेरी आवाज़ भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में। तेरी सूरत नजर आती है साईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम। तेरा
तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम, तेरा खत लेके सनम। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, मौसीकी हो या शायरी, इसके मुस्बत असरात हमारे जहन और दिल पर मुरतब होते हैं, और अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं या फिर कोई टेंशन तनाव है तो वो भी दूर हो जाता है मौसीकी या शायरी सुनने के बाद। और दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि आपका मूड भी एकदम फ्रेश हो जाए और अपने अंदर तरोताज़गी का आप एहसास करें। कलाम शायर के तहत आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी आवाज़ जिसके चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे बरे-सग़ीर में मौजूद हैं। दिलकश आवाज़ और उस पर दिलफरेब अंदाज सोने पे सुहागा, और ये आवाज़ है जनाब ज़ुबैर रिज़वी साहब की। कभी मुशायरों की रौनक हुआ करते थे आपका ताल्लुक़ उर्दू अदब से है। रेडियो टेलीविज़न की एक जानी मानी शख्सियत। ऑल इंडिया रेडियो के साथ आप तकरीबन 30 साल तक मुंसलिक रहे और दिल्ली उर्दू एकेडमी में 2 साल अपनी खिदमत अंजाम दी। आपका आबाई वतन अमरोहा है। आपके कलाम के मजमू की अगर बात की जाए दोस्तों, तो लहर लहर नदियाँ और मुसाफत शब, पुरानी बात, धूप का साइबान काबिल ज़िक्र हैं। तुम अपने चांद तारे कहकशां चाहें जिसे दे देना, तुम अपने चांद तारे कहकशां चाहें जिसे दे देना, मेरी आँखों पे अपने दर्द की एक शाम दे देना। तो लीजिए समात फरमाइए जनाब ज़ुबैर रिज़वी साहब का कलाम उन्हीं की ज़ुबानी। आपकी खिदमत में 2 नज़में पेश कर रहा हूँ। पहली नज़म का उन्वान है गुम होता हुआ शहर। गुम होता हुआ शहर। नज़म सुनिए कि बदलता फैलता बढ़ता हुआ ये शहर, बदलता फैलता बढ़ता हुआ ये शहर पहचाना नहीं जाता, वो इसके चौक चौराहे, फसीलें और दरवाजे, गली कूचे, वो सारे आशना चेहरे, वो रोज़ो शब जो मेरी याद का हिस्सा थे, अब सब हाफसे में मुनहदिम होने लगा है। फिर एक दफा इसको दोहराइए। बदलता फैलता बढ़ता हुआ ये शहर पहचाना नहीं जाता, वो इसके चौक चौराहे, फसीले और दरवाजे, गली कूचे, वो सारे आशना चेहरे, वो रोज़ो शब जो मेरी याद का हिस्सा थे, अब सब हाफसे में मुनहदिम होने लगा है। शहर में जो कुछ था मेरा वो सभी मिटने लगा है, शहर सारा अजनबी होने लगा है, शहर सारा अजनबी होने लगा है। और सामईन दूसरी नज़्म सुनिए, उन्वान है राय का। दिलरुबा खूबरू वो जो फूलों की सूरत खिले, चाहतों में पले, सीमतन गुलबदन साहतों में जो दीते रहे, एक दिन बेख्याली में हाथों से यूं छूट कर गिर पड़े, कांच के बर्तनों की तरह रेसा रेसा हुए। दिलरुबा खूबरू वो जो फूलों की सूरत खिले, चाहतों में पले, सीमतन गुलबदन साहतों में जो जीते रहे, एक दिन बेख्याली में हाथों से यूं छूट कर गिर पड़े, कांच के बर्तनों की तरह रेजा रेजा हुए, और हम इस जिया पर न रोए न अफसरदा खातिर हुए, और हम इस जिया पर न रोए न अफसरदा खातिर हुए। और अब एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मतलब सुनिएगा। मुझे तुम शोहरतों के दरमियाँ
गुमनाम लिख देना, मुझे तुम शोहरतों के दरमियां गुमनाम लिख देना, जहां दरिया मिले बेआब मेरा नाम लिख देना, मुझे तुम शोहरतों के दरमियां गुमनाम लिख देना, जहां दरिया मिले बेआब मेरा नाम लिख देना। ये सारा हिज्र का मौसम, ये सारी खाना वीरानी, ये सारा हिज्र का मौसम, ये सारी खाना वीरानी, इसे ऐ जिंदगी मेरे जुनों के नाम लिख देना, फिर इरशाद, फिर इरशाद। इसे ऐ जिंदगी मेरे जुनों के नाम लिख देना, इसे ऐ जिंदगी। और शेर सुनिए, तुम अपने चांद तारे कह कशां चाहे जिसे देना, तुम अपने चांद तारे कह कशां चाहे जिसे देना, चाहे जिसे देना, मेरी आँखों पे अपनी दीद की एक शाम लिख देना, मेरी आँखों पे अपनी दीद की एक शाम लिख देना। कमल साहब शेर सुनिए, मेरे अंदर पनाहें ढूंढती फिरती है खामोशी, मेरे अंदर पनाहें ढूंढती फिरती है खामोशी, लबे गोया मेरे अंदर भी एक कोहराम लिख देना, लबे गोया मेरे अंदर पनाहें ढूंढती फिरती है खामोशी, लबे गोया मेरे अंदर भी एक कोहराम लिख देना, लबे गोया मेरे अंदर भी एक कोहराम लिख देना। और शेर सुनिए कि शबिस्तानों में लौ देते हुए कुंदन से जिस्मों पर, शबिस्तानों में लौ देते हुए कुंदन से जिस्मों पर, हवा की उंगलियों से वस्ल का पैगाम लिख देना, हवा की उंगलियों से वस्ल का पैगाम लिख देना, जहां दरिया मिले बेआब मेरा नाम लिख देना। और आखिरी शेर सुनिए, मैं अपनी दास्तां को आखिरे शब तक तो ले आया, मैं अपनी दास्तां को आखिरे शब तक तो ले आया, तुम इसका खूबसूरत सा कोई अंजाम लिख देना, तुम इसका खूबसूरत सा कोई
انجام لکھ دینا. میں اپنی داستاں کو آخر شب تک تو لے آیا. تم اس کا خوبصورت سا کوئی انجام لکھ دینا. مجھے تم شہرتوں کے درمیان گمنام لکھ دینا. شکریہ. یہ تھے جناب زبیر رضوی، جن کے کلام سے ابھی آپ محظوظ ہو رہے تھے. اردو سروس کی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے. دوستو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، آپ سے روز ملاقات ہوتی ہے، بے شک ہوا کے دوش پر ہی صحیح. یہ بڑے سکون کی بات ہے ہمارے لیے، ورنہ کچھ رشتے ایسے بھی نبھائے جاتے ہیں، ایک دن ملنے کے لیے مہینوں انتظار میں بتائے جاتے ہیں. تو صاحبو، رکھیے اپنا خیال، خوش و خرم رہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے اپنے میزبان نعیم کو پھولا پنڈتا کے ساتھ. خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.